آصف کو اور خدا کے کلام کو زوردار تالیوں میں پھیلتے کریں گے. زوردار تالیوں میں خدا کے کلام کیجیے. سب تشریف رکھیے. اس یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. چونکہ آج پاک شراکت بھی ہے، وقت قلیل ہے، لیکن مقابلہ سخت ہے. ہمیں اس کا کام دن ہی دن میں کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جس رات کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا. سو اس رات سے پہلے جس رات دلہا آئے گا، ہم نے کلام سے اپنے آپ کو ملبس کرنا ہے، تیار کرنا ہے، تاکہ ہم اندھیرے میں ٹھوکر نہ کھائے. جو اندھیرے میں چلتا ہے وہی ٹھوکر بھی کھاتا ہے. آئیے ہم کلام کی طرف رجوع کریں گے اور آج کی مرکزی آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے. میں خدا باپ کا، اس کے بیٹے یسوع مسیح کا اور روح القدس کا شکر گزار ہوں کہ آج خدا نے یہ فضل بخشا کہ آپ کے درمیان آ کر ہم کلام کی خدمت کر سکیں. یہ خداوند کا فضل ہے اور کچھ بھی نہیں. نہ ہماری قابلیت، نہ ہماری صلاحیت، نہ ہمارا علم، نہ ہماری حکمت اور نہ ہی ہماری دنائی، بلکہ سارا کریڈٹ، میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، all the credit goes to Holy Spirit. سارا کریڈٹ جو ہے ہولی اسپرٹ کو جاتا ہے اور سارا جلال یسوع مسیح کو ملتا ہے اور خدا باپ اس جلال کا مستحق ہے. ہم خداوند کی کلام میں دیکھیں گے حجی نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، پہلا باب اور اس کی نبیات. جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے وہ اس کلام کو نکالیں اور کھولیں اور ہم مل کر اس کی تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں مرقوم ہے، تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا. رب الفواج فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے. سب کہیں گے آمین آمین. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے. یہ ہے آج کا کلام. ہم میں سے کسی کو فکر نہیں کہ خدا کے گھر کا کیا بنے گا. خدا کے گھر میں یہ ٹوٹ پھوٹ کیوں ہے؟ خدا کے گھر میں یہ ویرانی کیوں ہے؟ اس لیے خدا فرماتا ہے، میں وجہ بتاتا ہوں کہ ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اور میرے گھر کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے نتائج عزیزوں نہایت ہولناک ہے جو آپ کو آگے پڑھنے کو ملیں گے. اول تو خدا نے یہاں پر اس کی وجہ بتا دی ہے کہ ہمارا دھیان، ہمارا گیان خدا کے گھر کی طرف نہیں، خدا کی طرف نہیں، اور ہر ایک کا دھیان اور گیان، اس کی لگن، اس کی توجہ، اس کی محبت کا محور اس کا اپنا گھرانہ ہے، صرف اور صرف اس کا اپنا گھر. لیکن خدا کے گھر کی کسی کو فکر نہیں. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اور میرے گھر کی کسی کو کوئی فکر نہیں. یہ ہے آج کا کلام. اور ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے، یہ جو موضوع ہے آج کا، وہ ہے خدا کے گھر کی غیرت. سب بولیں گے اس موضوع کو، خدا کے گھر کی غیرت. سب اچھا بولیں گے، خدا کے گھر کی غیرت. آج افسوس کا مقام ہے کہ شاید بہت کم لوگ ہوں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن کو خدا کے گھر کی اپنے گھر سے بھی زیادہ فکر ہے. یہ وہ فکر ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اور کسی کو میرے گھر کی فکر نہیں. خداوند فرماتا ہے. اور پھر آج بھی خداوند یہ کلام آج بھی ہمارے لیے ہے، اور میں تھوڑی سی معلوماتی باتیں کہنا چاہوں گا
जो रूह कुद्स से बताई। इब्रानी का एक लफ्ज है बैत, बैत अलहम, बैत सैदा, और इसी तरह बैत के साथ मुख्तलिफ शहरों के नाम लिए जाते हैं। और बैत का जो लफ्जी मतलब है, बैत इब्रानी का लफ्ज है और इसी लफ्ज से बैत अलहम भी जुड़ा है। और बैत का मतलब घर है, मस्कन है, रिहाइशगाह है, जहां पर इंसान या फिर खुदा सुकूनत करता है। यह है बैत का मतलब। और घर के बहुत से मतलब है, वतन को, डेरों को और खैमे को भी घर कहा जाता है। पुराने दौर में लोग खैमे लगाते थे, आजकल के दौर में लोग ईंटों और सीमेंट और पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि खास किस्म के प्लास्टिक का, फाइबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादातर सीमेंट और लोहा जो है वो हमें नजर आते हैं, और फिर लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती है। ये घर इस तरह बनाए जाते थे ताकि लोग अपने आप को इसमें महफूज तस्वर करें, क्योंकि जंगल थे, बियाबान थे, आबादियां कम थी, और फिर उनसे खौफजदा होकर लोग चाहते थे कि हम महफूज मुकामों में रहें, जहां से हम मौसम की शिद्दत का भी मुकाबला करें, आंधियों और तूफानों का भी मुकाबला करके उसमें रह सके, और साथ ही जंगली जानवरों की बहुतात थी, जिसकी वसीला से, जिसकी वजह से लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि वो अपने लिए मजबूत घर बनाने लगे। हम देखते हैं ये घर का जो हाल है बयान किया गया है कि घर कैसे बनाए जाते थे और किस तरह बनाए जाते थे। और फिर ये पुराने दौर से है अब तक हम देखते हैं कि बड़े अमीर लोगों के लिए बड़े घर, और जो मुलाजमीन होते थे, नौकर चाकर होते थे, उनके लिए अमूमन ये शुरू से रिवायत है। आज हम देखते हैं यहाँ पर भी ये तफरीक मौजूद है कि जो हाई लेवल में या हाई जिनकी इनकम्स हैं, उनके लिए जो घर है वो मुख्तलिफ नजर आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं ये रिवायत कायम है, और ये रिवायत तभी से नहीं बल्कि शुरू से है कि नौकरों और मुलाजमीन के लिए छोटे घर बनाए जाते थे। और फिर हम देखते हैं घर का जिक्र हम दो तरह से करेंगे। एक घर वो है जो रूहानी है, एक घर वो है जो जिस्मानी और दुनियावी चीजों से बनाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा के घर को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। खुदा का घर जो है, इस इमारत को भी, जिसे चर्च का नाम दिया गया है, जिसे मुकद्दस किया जाता है, जिसमें दुआ की जाती है, जिसमें खुदा की हजूरी रहती है, जिसमें प्रस्तुति होती है, जिसमें हम अपनी गिरियासारी करते हैं, इसको भी खुदा का घर, खुदा की हैकल कहा जाता है। लेकिन नए अहकामे में एक नई तस्वीर घर की नजर आती है, और कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो घर को हम मुख्तलिफ तरीकों से आज देखेंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि घर की क्या अहमियत है। अभी हमने जिक्र किया घर किस तरह बनाए जाते थे, किस तरह उनकी ताबीर होती थी, और किस तरह किस किस के लिए कैसे कैसे घर बनाए जाते थे। अगर हम देखें खुदावंद के घर के बाबत, तो यहां पर हम खरूज की किताब में से देखेंगे, यहां पर खुदा के घर का इब्तिदाई जो नक्शा है वो बयान किया गया। खरूज की किताब उसका 36वां बाब 33वां बाब सॉरी उसका 33 बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा और बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबल का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता।
और सब लोग अबर के सतूर को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बातें करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशुआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमा से बाहर नहीं निकलता था। आमीन आमीन। ये है खुदा का घर जो इब्तदाई तौर पर कौम बनी इस्राइल के लिए, उस कौम के अंदर खुदा ने अपना खैमा इज्तिमा बनाया। इसको खैमा इज्तिमा का नाम दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी हुजूरी थी खुदा की खैमा इज्तिमा में, और लोग डरते थे, लोग कांप जाते थे, और लोग उस खैमा इज्तिमा के करीब भी नहीं आते थे, क्योंकि खुदा का अबर वहां पर ठहर जाता था। खुदा की हुजूरी, खुदा की पाकीज़गी, खुदा की कुव्वत, खुदा का मसा वहां पर ठहर जाता था और लोगों पर खौफ और राज तारी हो जाता था। ये था खुदा का खौफ। लोग अपने डेरों में ही रहते थे, वो अंदर जाता था और लोग देखते थे। ये था खुदा के घर की गैरत, खुदा का खौफ और खुदा का अबर और खुदा की पाकीज़गी का ये मेयार था। लेकिन आज जब यीशु मसीह ने उसी खैमा इज्तिमा के पर्दे को, उस हैकल के पर्दे को जब उसने जान दी, कलाम के ऊपर से नीचे तक फट गया और हमारी रसाई खुदा बाप तक गिरा दी। उस सरदार काहिन ने जो अपना ही खून लेकर कुर्बान पर चला गया और खून बहाकर हमें खुदा की बादशाही में शामिल करने का उसने दरवाजा खोल दिया, वो पर्दा फट गया। आज क्या गुनाहगार, क्या बदकार, क्या नापाक सब खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी का नतीजा है कि आज वो पर्दा फट चुका है। लेकिन पुराने दौर में देखें, कोई शख्स खैमा इज्तिमा के बाहर भी नहीं जाता था, बाहर भी खड़ा होने की जरूरत नहीं करता था। और अगर आप आगे चलकर तफसील से इसका मुताला करें तो आप देखेंगे कि जो काहिन था उसके गिर्द जंजीर बांध दी जाती थी, रस्सी बांध दी जाती थी, और वो अगर काहिन, अगर सरदार काहिन, अगर चरवाहा जो अंदर जाता था उसके अंदर कोई गुनाह या कोई नापाकी होती तो वो वहीं पर हलाक हो जाता था। और फिर बाहर खड़े हुए लोग अंदर जाने की जुर्रत नहीं करते थे और उसकी कमर के गिर्द घंटी बांध दी जाती थी और उनको पता लग जाता था कि काहिन गिर चुका है, हलाक हो चुका है अपने गुनाह के बायस। और बजाय इसके कि वो अंदर आकर काहिन को, मुर्दा काहिन को उठा दे, बल्कि वो बाहर से रस्सी से उसे खींच लेते थे। ये थी खुदा के घर का तकद्दुस, ये था खुदा का खौफ, और ये था खुदा का अबर जो वहां पर ठहरा रहता था। आज भी हमारे दरमियान खुदा का अबर रहता है, लेकिन हम उसकी परवाह ही नहीं करते। हम इसको अजीब जानते हैं, हमारे अंदर से खौफ निकल चुका है, क्योंकि कलाम फरमाता है तुम में से हर अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है। इतवार को जो सबत का दिन है उसमें भी लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़े चले जाते हैं। और मैं इसके वरनात नताइज का जिक्र करूंगा कि खुदावंद क्या फरमाता है। खुदावंद ने इसके लिए सजाओं को तरतीब दे रखा है, सजाओं को तजवीज कर रखा है। जो खुदा से बढ़कर अपनी और अपने घराने की फिक्र करता है ना वहां हलाक हो जाता है, चाहे वो कितनी भी तदबीरें कर ले। उस मालदार शख्स की माने जिसने लाखों हजारों का जो उसने माल असबाब अपने लिए जमा कर लिया, खुराक अपने लिए जमा कर ली, और उसने कहा ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत कुछ है, जा आराम कर, इतना बैंक बैलेंस है, जा आराम कर। और फिर खुदा की आवाज उस तक आई कि आज ये नादान, आज ही तेरी जान मुझसे तलब कर ली जाएगी, क्योंकि जान खुदा के हाथों में है। हालेलुया। इंसान की
पतरस रसूल के खाते देखें, इंसान की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है, ना ही सोने चांदी पर। फिर क्यों हर एक अपने घर को तोड़ा चला जाता है? आज का जो उन्वान है अजीजों, वो है खुदा के घर की गैरत। आइए हम देखें, एक नबी का जिक्र है, अभी वक्त थोड़ा है, हम इस नबी का जिक्र देखेंगे दूसरे शमूएल के 7वें बाब में, कलाम मुक़द्दस में क्या मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़े नबी का जिक्र है जिसके मुताबिक खुदा फरमाता है कि ये बंदा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। जैसे आज दाऊद का मतलब बयान किया गया कि दाऊद का मतलब है बिलवड, दाऊद का मतलब है प्यारा, दाऊद का मतलब है अजीज, यानी खुदा ने दाऊद को पसंद किया। आप देख रहे उसकी काबिलियत, उसकी बरकतें और उसका खुदावंद के लिए उसकी मोहब्बत। दूसरा शमूएल और उसका 7वां बाब, कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूँ, तो खुदा का घर पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात में ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जाओ मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद ने फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं, और जहां जहां मैं सब बनी इसराइल के साथ फिरता रहा। क्या मैंने कहीं किसी इसराइली कबीले से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इसराइल की गिलेबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल फ़ाज़िल फरमाता है कि मैंने तुझे 1.5 साल से जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था लिया, ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है, और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा बनाऊंगा। आमीन। ये जंगें नहीं लड़ी? क्या मैंने तुझे फतूहात नहीं बख्शी? क्या मैंने तुझे भेड़ साला में से नहीं लिया? तू एक छोटा सा चरवाहा था। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम पहले 2 साल पहले के हालात पर तवज्जो करें कि खुदावंद क्या फरमाता है। खुदावंद फरमाता है तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, और तू मेरा घर बनाएगा। देवदार की लकड़ी में खुदा रहना चाहता था, खुदा के लिए कोई मस्कन चाहता था, क्योंकि पहले वो खैबर इज्तिमा में सफर किया करता था। जहां जहां इसराइली सफर करते वो खैमा को उठाते, और उसके लिए एक कबीले को मखसूस किया गया जो इन साजों को, उन पर्दों को, उन हैकल की चीजों को उठाते थे। ये था डिसिप्लिन, और ये था खुदा के घर का तकद्दुस और खुदा के दिल की ख्वाहिश। खुदा क्या चाहता था? उसने दाऊद पर जाहिर की। क्यों जाहिर की? क्योंकि दाऊद ने खुदा का ख्याल किया। उसने कहा मैं तो लकड़ी के घर में रहता हूं, मैं तो बड़े महल में रहता हूं, लेकिन मेरा जो खुदा है वो किस घर में रहता है? उसने खुदा के बारे में सोचा, और फिर खुदा ने उससे क्या कहा कि मैंने तुझे बड़ी फतूहात बख्शी। आज हम जिंदगी में फतह लेना चाहते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह के अल्फाज हैं, पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, तो बाकी सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएगी। यह है खुदा के बारे में सोचने का नतीजा। लेकिन हमारे बारे में क्या कहा गया है कि तुम में से हर एक अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है, और मेरे घर की किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये सतून टूटे हुए हैं, ये खिड़कियां, ये दरवाजे टूटे पड़े हैं, लेकिन हमारे घर की अगर खिड़की का पर्दा भी अगर खराब हो जाए तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मैं ये कमेटी डालूंगा, मैं ये पैसे जमा करूंगा और इस घर में नए पर्दे लगाऊंगा। लेकिन अपने घर के मुताबिक तो सोचते हैं, लेकिन खुदा के घर की किसी को ना तो गैरत है और ना ही सोच है और ना ही ख्याल है। फिर हम क्यों कहते हैं कि हम दाऊद की तरह फतूहात को हासिल करें, हमारे बेटे और बेटियां कामयाबी के जीने तय
کرنے شروع کریں اور ہم بڑے مالدار بن جائے، ہماری خوشحالی آ جائے، ہمارے لیے بحالی آ جائے، ہمارے لیے ہریالی آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک خدا اپنے گھر کی طرف بڑھنا چلا جاتا ہے اور خدا کے گھر کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن داؤد کے اندر خدا کی غیرت تھی، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے بیٹے کی غیرت، خدا کے بیٹے کی کیسی غیرت تھی۔ خدا کے بیٹے کی غیرت کو دیکھیں، متی کی انجیل ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے، متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی پریز گاڈ، خداوند کی غیرت تو دیکھیں اپنے گھر کے لیے، خدا کی غیرت کیسے تھی، یسوع مسیح کی غیرت کیسی تھی خدا کے گھر کے لیے۔ اور کلام میں لکھا، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوں کی کھو بناتے ہو۔ آج ہمارے دل خدا کی ہیکل ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ لیکن ہمارے اندر تو نہیں بسا ہوا۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہے، اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ہمارا اپنا ہی گھرانہ ہے، ہمارا اپنا ہی گھر ہے، اس کا مطلب خدا تو یہاں پر نہیں رہتا۔ جب تم میرے حکم پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ کیوں میری پرستش کرتے ہو؟ کیوں میری عبادت کرتے ہو؟ اپنے ناپاک لبوں سے میری پرستش کرتے ہو، لیکن تمہارے دل میں کچھ اور ہے، تمہاری پریورٹیز چینج ہو چکی ہیں، اور تمہاری پریورٹی پہ تمہارا گھرانہ اور تمہارا گھر ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی غیرت دیکھیں، جب اس نے کبوتر فروشوں کو دیکھا تو ان کے تختے اس نے الٹ دیے، مسمار کر دیے، اور اس نے کہا لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو لیتے خدا کا نام ہے لیکن جمع وہ پیسہ کرتے ہیں، عزت اور شہرت کے لیے خدا کے مقدس بنائے جاتے ہیں، لیکن خداوند دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے۔ ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر ہے، لیکن عزیزو ہمارے خدا کے گھر کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہم دیکھیں گے اب گھر کو ہم ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے کہ ہمارے روح بدن اور جانے میں ہے وہ خدا کا مقدس ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ یہ ہے نئے عہد نامے میں، ایک تو ہم نے خدا کے گھر کی تقدیس بحیثیت ہیکل کے کرنی ہے، اور دوسری خدا کی تعظیم اپنے دل کے اندر موجود اس کی حضوری کی کرنی ہے۔ کیا ہماری آنکھیں کچھ ایسا تو نہیں دیکھ رہی جو ناپاک ہے؟ اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں خدا کے خادم سے اس کلام کو سنا کہ ناپاک چیزوں کو مت چھو۔ اب ہم خدا کے مقدس کو کس طرح برباد کرتے ہیں، اور دیکھیں گے اس کے نتائج انتہائی ہولناک ہیں۔ ہم دیکھیں گے جسم کے کاموں کی وجہ سے ہم خدا کے گھر کو، ہم خدا کی ہیکل کو مسمار کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ جو اس ہیکل کو، یعنی اپنے دل میں خدا کی حضوری کو اپنے گناہ اور ناپاکی کے باعث مسمار کرتا ہے، میں بھی اس کو مار ڈالوں گا، میں بھی اس کو تباہ کر دوں گا۔ کلام میں لکھا ہے ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ آئیے دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کون کون ہے جو خدا کی بادشاہی میں
दाखिल नहीं होंगे। लिखा है मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, और जो दूसरी मौत में मर गया वो मरा ही रहेगा। पहली मौत जिस्मानी, और कलाम में लिखे इसके बाद भी एक नई जिंदगी दी जाएगी जहां पर अदालत होगी और फिर हिसाब होगा और किताबें हयात होगी और वो पेश की जाएगी। जिस शख्स का नाम उस किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और कलाम में लिखा है वो आग कभी बुझने की नहीं है, क्योंकि हम में से हर एक अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है। और कलाम में लिखा है कि वो आग इंतहाई होलनाक है। अगर हमारी हाथ का सिर्फ उंगली आग से जल जाए, हम उसके साथ सारे बदन पर उस तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। और अगर सर का पार सारा बदन आग के अंदर झोंक दिया जाएगा तो फिर क्या आलम होगा, जरा सोचिए। यह सोचने का मुकाम है। हम में से हर एक अपने ही घर को छोड़ा चला जाता है, अपनी ही ख्वाहिशों की तकमील करते हैं, अपने ही मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, अपनी बेटियों और बेटों के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन खुदा के घर की गैरत कहां है? खुदा के घर की गैरत यीशु मसीह में थी। खुदा के घर की गैरत दाऊद में थी। खुदा की घर की गैरत, खुदा के नाम की गैरत मूसा के अंदर थी। खुदा के घर की गैरत इब्राहिम के अंदर थी। खुदा की गैरत पतरस के अंदर थी, जिसने जब उसे सूली पर चढ़ाया गया तो उसने कहा मेरा मुनज्जी भी सीधा ही सूली चढ़ा था, लेकिन मुझे उल्टी सलीब दो। यह है खुदा के घर की गैरत, यह है खुदा के नाम की गैरत। लेकिन हम तो जिंदा हैं, हमें सुई गैस बिजली पानी सब वाफर मकान में मिलता है, हमें हर चीज वक्त पर मिल जाती है, इसीलिए हम अपने घर की तरफ दौड़ने चले जाते हैं। आप इसके नतीजे देखें। एक और नतीजा मैं बताऊंगा, इसके बाद हम कलाम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, हज्जी का सहीफा निकालेंगे। ये जो कलाम है, आप ये ना समझे कि मैं कलाम दे रहा हूं तो मैं इससे मुबर्रा, मैं इससे मेरी जान छूटी हुई है। कलाम में लिखा तुम इससे बथेरे उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। ये कलाम उस्तादों के लिए भी है, ये कलाम शागिर्दों के लिए भी है, ये कलाम पूरी कलीसिया के लिए है। और कलाम जो है किसी की तरफदारी नहीं करता, चाहे वो कायम है, चाहे वो एक आम शख्स है कलीसिया का, और चाहे वो एक आम रुकन है। खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। आइए देखें कि इसके फौरी नताइज क्या होते हैं जब हम खुदा के घर में कुछ कुर्बानियां नहीं गुजराते, जैसे पुराने अहदनामे में गुजरानी जाती थी। और कलाम में लिखा है कि फिर क्या होता है, तीसरी आयत में लिखा है पहले बाप की, तब हज्जी नबी का सहीफा पहला बाप तीसरी आयत, तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी के मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुस्तफ घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल फ़ाज़ यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फ़ाज़ यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो, और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फ़ाज़ फरमाता है क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान पड़ा है और तुम में से हर एक अपने घर की तरफ दौड़ा चला जाता है, अपने घर की फिक्र,
اپنے مال اور اسباب کی فکر، اپنے بینک بیلنس کی فکر، اپنی گاڑیوں کی فکر، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر، اپنے پلاٹس کی فکر، اپنے مکانوں کی فکر، اپنے مستقبل کی فکر. اسی لیے کلام سخت ہے، کلام میں لکھا ہے اس لیے اب نتائج دیکھیں، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے، اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑ پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر خداوند کا قہر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قحط شروع ہوگا اور ہر چیز گراں قدر ہو جائے گی، مہنگی ہو جائے گی، لیکن عزیزو ہمارے ملک کی یہ حالات ہے کہ قحط شروع ہونے نہیں والا بلکہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم قحط کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکے ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ ہر ایک اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور اپنا مال سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. سوراخ دار تھیلی کون سی ہوتی ہے؟ آپ کی تجوری، آپ کی جیب، آپ کا وہ گھر کے اندر کوئی خاص جو تالوں سے بند کیا جاتا ہے، جہاں پر تالے لگائے جاتے ہیں، جہاں پہ گھر کے بزرگ اس روپے پیسے کو رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور ہر اچھے برے وقت کے لیے رکھتے ہیں تجوریاں. لیکن کلام کہتا ہے اوپر سے تو ہم ڈالتے ہیں لیکن نیچے میں نے تمہاری جیبوں کے اندر سوراخ کر دیے ہیں، اور جو ڈالتے ہیں وہ نکل جاتا ہے. انگلش کا ایک محاورہ ہے ایزی کم ایزی گو، کیونکہ جو آسانی سے حاصل کیا جاتا ہے وہ آسانی سے چلا جاتا ہے. اس سے مراد منفی ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت اور وہ آسانی سے چلی جاتی ہے. اور پھر دوسری وجہ جو خداوند کہتا ہے کہ ہم خدا کے گھر کی فکر نہیں کرتے، ہم خدا کے گھر میں لانا فکر نہیں کرتے. یہ میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ہم سب کے لیے ہے. یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ کلام پوری مسیحی قوم کے لیے ہے، یہ کلام تمام ایمانداروں کے لیے ہے. کہ کلام فرماتا ہے کہ خدا ہماری جو ہے، کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. یہاں پہ مزدور کا ذکر ہے، کسی امیر شخص کا نہیں ہے. It means that laborers has also commanded to give some offerings in front of God. یہ صرف امیر لوگوں کے لیے دہیج دینا اور پھر چندے دینا، پھر شکر گزاریاں لانا صرف امیروں کا کام نہیں ہے. یہ غریب پر بھی اسی طرح لاگو ہے جس کا امیر پر، لیکن ہر ایک کا حصہ خدا نے مقرر کر رکھا ہے. یعنی دہیج، یعنی 10واں حصہ خدا کے لیے نکالنا اور خدا کے گھر میں لانا، اور اس کو اپنی جو باقی جو ذرائع ہے، روپیہ پیسہ، اس کو پاک کرنا، اس کی تقدیس کرنا. یہ ہے طریقہ اپنی انکم کو، اپنے ذرائع کو بڑھانے کا. لیکن ہم میں سے ہر اپنے گھر کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور خدا کے گھر کی کسی کو فکر نہیں ہے. اور پھر عزیزو اس کے انجام آپ نے دیکھا ہے. روحانی طور پر اگر ہمارے اندر بزدلی ہے، بے ایمانی ہے، اور آپ کو میں ایک شخص کا، ایک نبی کا ذکر بتاؤں گا، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ ابراہیم نے قربانی گزاری، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ صبح سے شام تک پرندے اس پر جھپٹ رہے تھے، اور ابراہیم میرا اور آپ کا باپ، ایمانداروں کا باپ، ان کبوں کو، ان چیلوں کو اور پرندوں سے اپنی قربانی کو محفوظ کر رہا تھا. یہ ہے قربانی کی تقدیس، اور یہ ہے اس کی زندگی میں برکتوں کا آنا کہ میں تجھ میں سے قوموں اور جتھوں اور قبیلوں کو پیدا کروں.
सो बुज़दिलों और नापाकों और हरामकारों और जादूगरों का हिस्सा आग और गंधक की झील है। आइए हम सब आज इरादा करें कि हम खुदावंद के घर की तकदीस में आगे बढ़ें, अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने दिलों को खोलें और खुदावंद की अपने हदियों, अपनी शुक्रगुजारियों के और जो खुदा के घर के काम है उन कामों की हम फिक्र करें। आज खुदा के कलाम का बड़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन।